Hey guys, welcome back. This is Bushir Dolakia and you guys are watching Mature Reactions. I welcome you all. So आज का जो वीडियो है वो एक मुझे लगता है कि नॉस्टैल्जिक वीडियो होने वाला है, स्पेशली टू द किड्स ऑफ 90s. अगर आपको वो दौर याद है जब टेलीविज़न नए नए शुरू हुए थे और आपको याद होगा कि एक ही मोहल्ले में एक दो ऐसे घर होते थे जहाँ पे टीवी होते थे और फिर सभी लोग जो है वहाँ पे इकट्ठा हो जाते थे टू वॉच द सीरियल्स, टू वॉच द क्रिकेट मैच एंड टू वॉच द डिफरेंट अगर कोई 26 जनवरी की परेड होती है, 15 अगस्त होता है या कोई भी इवेंट होता है बड़ा इस देश के, तो सभी लोग जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं एक घर में और जिनके घर पे टेलीविजन होता था. इट वॉज काइंड ऑफ अ प्राइड थिंग फॉर देम. सो या आई थिंक आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है एक ओल्ड टीवी सीरियल्स का वीडियो. मतलब उसमें जो लिस्ट ऑफ सीरियल्स जो थी जब शुरू हुआ था इन 80s अर्ली 90s यू कैन से, जब टेलीविजन तो कौन सी सीरियल्स थी, कौन सी नए नए शोज आते थे, एंड आई थिंक दोज वर द ब्यूटीफुल डेज फॉर श्योर. सो आज का जो वीडियो है उसका टाइटल जो है वो 7 स्पेक्टेकुलर सीरियल्स बिफोर सास बहू ड्रामा रून्ड एवरीथिंग. एंड आई टोटली एग्री ऑन दैट कि उसके बाद जो लेवल काफ़ी डाउन हुआ है, पर उससे पहले एक बहुत ही खूबसूरत शोज आते थे एंड आई एम श्योर इट्स गोना बी अ हेल ऑफ अ वीडियो टू वॉच एंड इट विल बी नॉस्टैल्जिक फॉर सो मेनी of us. So yeah, without wasting much time, let's see the video first. The original link is in the description. Make sure you watch this entire video, and if you like my reaction, don't forget to like the video and subscribe to the channel. So yeah, let's see the video first. We have to address the fact that many people complain about the misogyny and sexism in the entertainment industry, but creators were actually pushing the boundaries in every shape and form before we were plagued by the Saas Bahu serials. From compelling storylines, strong female characters, complex physical and emotional issues, and catering to the pan-Indian audience at the same time. There were some beautiful gems on television before we had 20 shows on 20 channels with women in sarees fighting about what someone made for dinner. So here is Tried&Refused Productions with 7 spectacular Indian TV shows before Saas Bahu dramas ruined everything. Byomkesh Bakshi. Talk about the original crime thrillers and characters, and rather than ripping off the West like we do now, we had such an interesting character in the detective Byomkesh Bakshi. A character created by Sharad Indu Byandopadhyay. The writer incorporated the character and his right-hand man Ajit Kumar Banerjee in close to 32 stories before his death. The character resonated with so many readers that DD National created the TV series based on the characters who were played by Rajit Kapoor and KK Raina. ऐसे तेज तरार और चौकस चोर आजकल नजर नहीं आते. ये तो दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसे महानुभाव आजकल बिल्कुल गायब हैं. A Bengali tea-drinking, chain-smoking detective who considered himself to be a truth seeker rather than being concerned with the law. A phenomenal show and something we dearly miss. Malgudi Days. A major throwback but an absolute breath of fresh air was the collection of short stories by R.K. Narayan called Malgudi Days. It was a great show. I still watch it sometime online. By well-known Kannada actor and director Shankar Nag, the episodes incorporated the storyline and characters transitioning into sketches by R.K. Lakshman. उसमें ना वो पुराने भारत की तस्वीर है और बहुत खूबसूरत स्टोरी है. अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज चेक इट आउट. इट्स ऑन YouTube also. राजन की पूछ. The television series not only restricted itself to Malgudi Days but also included books like A Horse with Two Goats, Swami and Friends, and The Vendor of Sweets. A series that is a clear reflection of the fact that we as creators are great storytellers and television was actually exciting in the late 80s. Office. What can be considered to be one of the most Indian-centric shows which focuses on red tape, corruption and Indian bureaucracy was one of the most hilarious shows on TV. This TV show was such a classic that it led to the creation of its solo movie. We all remember the characters so well, be it the frustrated Musaddi Lal played by Pankaj Kapoor, who somehow to file some government documents who would always bump into the same caricatures like the gossip mongrel Usha Madam, Bhatia Saab and especially Patil. This show with one of the best casts was definitely a hit with audiences. चल मैं बाद में फोन करती हूँ. कहिए. जी मुझे स्कूल खोलना है. क्यों बच्चों को पढ़ाने के लिए. तो इतने सारे स्कूल खुले हैं वहाँ नहीं पढ़ा सकते. Filmy Chakkar. One of the most interesting as well as funny television shows that aired on Z television in the late 80s was a show titled Filmy Chakkar. Any movie buff's dream is to see a show with two characters that are obsessed with movies. We see Satish Shah and Ratna Pathak Shah play the role of husband and wife, Prashant and Rukmani. Way before they made us hysterically laugh in Sarabhai vs. Sarabhai, they were making just about to say this underrated television series. Sarabhai vs. Sarabhai, what a show.
The equation with the Dadi that despises movies and the hilarious altercations and situations they get into, dwelling into movie situations and dialogues for solutions, make for a TV show that will make you go down memory lane and definitely tickle your funny bone. Shanti, Ek Aurat Ki Kahani, considered to be a classic TV series that showcased a complex premise with a female lead at a time where it was unheard of, was Shanti. Starring an impressive cast of Mandira Bedi, Amit Behel and Anup Soni, the story followed two men who ran the biggest film production house in the country and a journalist's journey in digging deep into their past and understanding their stories from rags to riches. Family complexities, the effect of professional failure, mental ailments, deception and greed. These are just some of the themes the impressive show focused on and was definitely a redefining fictional show on television. मैं कामेश महादेवन को नहीं बख्शूंगा। ये राजी सिंह का वादा है। इस बात को मत भूलना। Arohan. Talk about women empowerment and Pallavi Joshi. A TV show titled Arohan is a prime example of how creators did not discriminate until and unless it was an engaging storyline. Showcased on Doordarshan, the show was written and produced by Pallavi Joshi, who also starred in the series. A hypothetical case in which women cadets joined the Indian Navy and the trial and tribulations they faced during their training in the Naval Academy. गार्ड रूम में जाओ, 2 राइफल्स लेके आओ और इस ग्राउंड के 2 चक्कर लगाओ। मैम? 3। लेकिन मैम 4। Tackling so many aspects of societal norms and oppression with respect to women, it provided women on screen that every girl could look up to and starred talented actors like Shefali Shah and Satyan Kapoor. Before we discuss the last show, here are some honorable mentions. तुम्हें तो किसी टीवी के ऐड में फौजी, शाहरुख खान। अरे सुनती हो, मुन्ना दौड़ में फिर फर्स्ट आया है। हाय हाय, क्यों ना आए? मैं जो रोज उसे फेफड़े फाड़ सिगरेट पिलाती हूँ। क्यों ना हम एक पेइंग लिस्ट रख लें? इधर उधर, गुड आइडिया। लेकिन आंटी के फ्लैट में There was a family number 1 also, अगर आपको से याद हो किसी को। जब आंटी आने वाली होंगी तो भगा देंगे उसे। कोई भी अंदर आ सकता है ना? हाँ। Star bestsellers, yeah. It was a series of different episodes. Short film. देश को मंत्रियों की संख्या बताने के लिए नहीं, देश प्रधानमंत्री, yes. और अकेला प्रधानमंत्री देश को नहीं चला सकता। गैर हाजिर रहकर भी कोई देश नहीं चला सकता। Flop show. Jaspal Bhatti is a creator and actor that is definitely missed when we think of Indian television. One of his best and most underrated shows, in our opinion, was the 1991 Doordarshan aired show titled Flop Show. Written, directed and starring Jaspal Bhatti, the satirical comedy focused on the socio-cultural problems that the common man faces in India. Sadly, the show only had 10 episodes, and definitely looking back at this gem, it was way ahead of its time. A premise and comedy style that many viewers may have not got in the early 90s, but would have definitely been a rager if it ever was showcased now. सर इतनी जबरदस्त ट्रेजेडी है कि पर दिल रो पड़ता है। वेरी गुड। इस साल का बेहतरीन टीवी सीरियल जिसे देख के पेट में बल पड़ गए, वो है कब्रिस्तान का चौकीदार। And that was the list, guys. Write it down in the comments below if you have some video ideas for our channel. Please don't forget to follow me on Instagram. The handle's right in front of you. Follow me at JammyPants4. Also, please support us by smashing the like button. Wow, so now that's what we call nostalgia. You know, कितनी सारी सीरियल्स थी यार, वो दौर आई थिंक बहुत ही कमाल का था, ना सिर्फ सीरियल वाइज बट आई वुड से मोस्ट ऑफ यू वुड एग्री कि कार्टून्स भी बहुत ही खूबसूरत आते थे कंपेयर टू आज के कार्टून्स। यू नो, वो जो ओल्ड कार्टून नेटवर्क था, ओ बॉय, जब भी मैं ये दौर को याद करता हूँ आई थिंक आई हैव टू मेंशन कि वो जो कार्टून से ओल्ड कार्टून नेटवर्क्स के ऊपर वर द बेस्ट। यू नो, मैं ऑलमोस्ट सभी देखता था एंड इट वाज एब्सोल्युटली ग्रेट। बट या कमिंग बैक टू दिस शोज, द सीरियल्स, यू नो, बहुत सारी ऐसी सीरियल्स थी जो मैंने देखी है पर्सनली, लेकिन उसमें काफ़ी सीरियल्स ऐसी भी थी जिसके बारे में सुना था, दे वर वेरी बिग हिट्स ड्यूरिंग दैट टाइम, बट मैं देखता नहीं था क्योंकि जॉनर जो है वो अलग अलग थे। काफ़ी इसमें कॉमेडी दिखाई दी है, फिर सीरियस यू नो जॉनर भी दिखाई दिया, फिर साइकास्टिक यू नो एक एंगल भी था उसके अंदर। बट या कमिंग बैक टू द शोज, द ब्योमकेश बख्शी, आई थिंक मैंने नाम सुना है, आई एम श्योर आपने भी काफ़ी लोगों ने नाम सुना है। इट वॉज अ वेरी बिग शो, अभी भी लोग जो है वो उसको काफ़ी पसंद करते हैं। अगर वो शो आई थिंक रिलीज हो तो बहुत सारे उनके जो है फॉलोअर्स होंगे, बहुत सारे उनके व्यूअर्स होंगे। एंड इट वाज अ ग्रेट डिटेक्टिव शो ऑफ इंडियन फिल्म, यू नो, फिल्म यू कैन से एरा। और उसके बाद ऑफिस की बात करी, आई थिंक ऑफिस इज वन ऑफ आई थिंक माय फेवरेट, यू नो, पंकज कपूर साहब, और वो जो पूरी स्टारकास्ट थी बहुत ही मंझी हुई स्टारकास्ट थी। एंड टॉकिंग अबाउट
वो जो एक इंडियन सिस्टम में करप्शन होता है या सरकारी ऑफिस में जो धक्केबाजी होती है, आपको बेफिजूल में कभी कभी परेशान किया जाता है। आई एम नॉट सेइंग एवरी टाइम या एवरीबॉडी डज दैट, बट वो एक पार्ट ऑफ द सिस्टम था। एंड इट वाज greatly you can say portrayed onto the television। और मालगुडी डेज की बात करी, मालगुडी डेज आई थिंक वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको हमेशा ही शोकेस किया जाता है और बहुत ही सिंपल, बहुत ही सटल स्टोरीज होती है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन लोग उसको स्टारकास्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था अर्लियर कि वो उसमें पुराने भारत की कल्चर होती है, वो छोटे छोटे गाँव, वो छोटा कस्बा, और वो आराम से लोग अपने मकान में रह रहे, एक मकान जो बहुत ही सिंपल सा लेकिन बड़ा सा मकान, और लोगों को एक सादगी है अपने रहन सहन में, अपने बोलने में, उठने बैठने में। सो इट वाज अ वंडरफुल शो और बहुत इनोसेंस था उसके अंदर, बहुत ही एक प्योरिटी थी। उसके बाद आई थिंक शांति, ये स्टार बेस्ट सेलर, और दूसरी बात की गई एक और शोज़ की जिसके बारे में मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, हालांकि मैंने देखा था शांति। मुझे याद है कहीं ना कहीं कि इट वाज अ काइंड ऑफ अ शो दैट यूज्ड टू बी स्टार कास्ट, बट ऑफ कोर्स मैं बहुत ही छोटा था तो वो आई थिंक लेवल जो मेरे समझ से बाहर था। और उसके बाद आई थिंक दूसरे कुछ शोज़ भी थे, सतीश शाह साहब का और रत्ना पाठक मैम का। लेकिन अगर आप देखें तो उन दोनों को तो जब भी याद करते हैं हमको साराभाई वर्सेस साराभाई ही याद आते हैं। लेकिन आई थिंक नॉट टू फॉरगेट कि उस दौर में भी बहुत सारे और भी सीरियल्स थे, जैसे रामायण, महाभारत। मुझे लगता है कि वो सारे चीज़ें सीरियल्स तो जो डेफिनेटली उसका मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। जय हनुमान आता था एक, वो भी काफ़ी था। अलीफ लैला आता था, वो भी एक बहुत ही खूबसूरत शोज़ था। शक्तिमान आई थिंक उसको भी आप इंक्लूड कर सकते थे। उसके अलावा आई थिंक हद कर दी, फैमिली नंबर 1, कभी इधर कभी उधर आता था। और आई थिंक दूसरे भी काफ़ी शोज़ होंगे आई एम श्योर कि जो हम लोग देखते थे और हम लोग बड़े हुए। 2000 के बाद तो आई थिंक बहुत सारे आई थिंक ऐसे शोज़ थे जो कि काफ़ी पॉपुलर हुए थे स्पेशली बच्चों के लिए। बट टॉकिंग अबाउट द 90s ये सारे शोज़ भी उसमें इंक्लूड ज़रूर हो सकते थे। बट या आई थिंक इट वाज अ ग्रेट दौर, ग्रेट एरिया यू कैन से, एंड वन ऑफ द बेस्ट ऑफ आवर इंडियन टेलीविजन, क्योंकि वो शुरू में वो फ्रेशनेस थी। अब तो आई थिंक वो पूरा कमर्शियल हो चुका है और कंटेंट के ऊपर ध्यान नहीं आता, सिर्फ हर रोज़ आपको एपिसोड जो है वो छापने हैं, सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान आता है। सो आई थिंक देयर इज़ डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी एज फार एज द करंट कंटेंट इज़ गोइंग ऑन। बट अभी भी काफ़ी अच्छे शोज़ आते हैं कुछ ना कुछ, बट ओवरऑल अगर आप बात करें तो लेवल जो है काफ़ी डाउन हुआ है। बट या इट वाज अ ग्रेट टाइम टू सी कि कितना एक बेहतरीन रिच हमारा कल्चर था, रिच हिस्ट्री है हम लोगों के पास, और काफ़ी क्वालिटी और काफ़ी एक टैलेंटेड पीपल ऑफ ग्रुप्स थे जो कि इस तरह के शोज़ जो आपको प्रोड्यूस करके देते थे। सो यार गाइस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। आई एम श्योर कि आपने भी इसको एंजॉय ज़रूर किया होगा। मुझे ज़रूर बताएगा कि आपके कौन से शोज़ फेवरेट थे, आपके कौन से सीरियल्स फेवरेट थे, वो जो फेवरेट थे इस लिस्ट में आए कि नहीं आए। अगर नहीं आए तो ज़रूर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आपको कौन से फेवरेट शोज़ याद है और वो दौर जो है वो आपको कैसा याद है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट रिएक्शन। मीनवाइल आपके पास ऐसा कोई भी वीडियो हो तो ज़रूर मुझे रिक्वेस्ट करें इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड मोर देन हैप्पी टू रिएक्ट ऑन योर फेवरेट वीडियोज़ इज वेल। और ये वीडियो पसंद आया, मेरा रिएक्शन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। या गाइस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू गाइस प्लीज टेक केयर ऑफ योर्स एंड योर फैमिली। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।